یہاں پر پہنچے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے. اور دوسری بات میں نے اس لیے بھی ٹائم دیا تھا, لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ شکر گزاری کرتے ہیں, لوگوں کو برکت ملتی ہے. تو کائنڈلی ہمارے پاس بہت کم وقت ہے, اس لیے خاموشی کے ساتھ کلام کو بھی سنیے گا. اور ہم نے یہاں پر ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کا بھی لکھا تھا, بتایا تھا. میں کلیئر کرتا چلوں کہ ڈاکٹر جمیل ناصر تو نہیں آئے. اب سوال یہ ہے کہ آپ ان کو ملنے کے لیے آئے تھے یا کلام کو سننے کے لیے؟ خدا آپ کو برکت دے. بائبل میں لکھا ہے خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے بڑھ کر عظمت بخشی ہے. اور وہ خدا جس کا کلام آپ سننے کے لیے آئے ہیں, اس کا وعدہ یہ ہے کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہیں میں وہاں پر موجود ہوں. جمیل ناصر صاحب کہہ کے نہیں آئے, لیکن خدا یہاں پر ہے. ہاللویا. تو خدا کے لیے تالیاں, زور سے تالیاں. وہ یہاں موجود ہے. خدا کے سب وعدے اس نے ہاں کے تھے. خدا اپنے وعدوں میں سچا اور برحق خدا ہے. تو بات یہ ہے کہ خدا بھی ہے, کلام بھی ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب وہاں پر ہے جہاں پر انہیں ڈالر کی پیشکش وہ امریکہ میں ہے. ہمیں بکنگ کروا کے سارے کام کرنے کے باوجود وہ انگلینڈ میں ہے, وہ امریکہ میں چلے گئے. اور پھر ان کے فون ماننا مسلسل. تو ہم خدا کے کلام سے استفادہ کریں گے, مستفید ہوں گے. اور میں چاہوں گا بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا, نوٹ کر لیجیے گا. ہمارا مضمون خالص تعلیم اور آیت ہے, جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا, اس کے پاس خدا نہیں ہے. اور اگر خدا نہیں تو ایسی تعلیم کو ہم نے چاہنا ہے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو مسیح کی خالص تعلیم یعنی بائبل کے ساتھ ہونا ہے. ہاللویا. تو بائبل مقدس میں سے میں تھوڑا ریپیٹ کروں گا, کل کے حوالے میں سے لکھا ہے, بڑی توجہ سے سنیے گا. پس فریسیوں اور فقیہوں نے یسوع سے پوچھا, کیا سبب ہے تیرے شاگرد بزرگوں کی روایات پر عمل نہیں کرتے ہیں؟ آمین. تو جو فقیہ فریسی جو مذہبی لیڈر تھے, انہوں نے یسوع سے شکایت کی ہے. کس بات کی؟ خدا کے کلام کے تعلق سے نہیں. وہ روایات جو بزرگوں نے پیدا کی تھی, بنائی تھی, وہ ان پر عمل نہیں کر رہے تھے. ٹھیک اسی طرح آج بھی کلیسیاؤں کے اندر بہت ساری اپنی ایجاد کی ہوئی روایات ہیں, عبادات ہیں, دعائیں ہیں, نمازیں ہیں, جو کہ نہ صرف خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں بلکہ خدا کے کلام کے اگینسٹ ہیں. اور ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے. اور کیوں غور کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے بتایا کہ جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا, اس کے پاس خدا نہیں. آمین بھی. آئے بیٹا, آپ سامنے آئیے گا اور میں چاہوں گا حوالے نکالیے گا. تھوڑا سا میں ٹچ دوں گا کل والے حوالے, ایک دو حوالے بس, اور اس کے بعد میں مزید آگے بڑھوں گا. پہلا تیموتھیوس, نوٹ کر لیں. دیکھیں جن کے پاس بائبل ہے, نوٹ بک ہے, وہ نوٹ کر لیں. یہ خاص چیزیں ہیں. اور جب میں کل ملا لوگوں سے تو کئی لوگوں کو شوق لگا کہ یہ آپ نے عجیب بات بتائی. میں نے کہا بھائی بائبل میں لکھا ہے. کہاں پر لکھا ہے؟ جو کچھ ہم پڑھنے کو ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ کس نے کہا ہے. اور جو کچھ خدا کہتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اگر برکت پانا چاہتے ہیں. پہلا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب 5 ہے, پڑھی گا. کلام حق کا پڑھنا شروع کرتا ہوں اس یسوع کے نام میں. آمین. کیونکہ خدا ایک ہے. آمین. خدا کتنے ہیں جی؟ آپ اس کو ایک کیوں کہتے ہو؟ کیوں کہتے ہو آپ ایک؟ خدا ایک ہے. کیوں ایک ہے خدا؟ بھئی آپ پسند آپ کو کیسے پتا؟ بائبل میں لکھا ہے. کہاں
کچھ بائبل میں لکھا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، یسوع خدا کا بیٹا ہے، لوگ نہیں مانتے لیکن ہم مانتے ہیں۔ اور ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح اب بھی بائبل میں ہی لکھا ہے کہ خدا کتنے ہیں؟ خدا کتنے ہیں؟ میں کیوں ایک خدا پر ایمان رکھتا ہوں؟ کیونکہ ایسا خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ آمین۔ آگے پڑھو جی، کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خدا ایک ہے، ایک ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، درمیانی بھی ایک ہے، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ آمین جی، جو یسوع مسیح جو، یہ کہاں لکھا ہے؟ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی ذات میں کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ باہر یسوع مسیح پوری کائنات کے اندر ایک ایسی ہستی ہے جس کی ذات کے اندر دو شخصیات جو ہیں وہ متحد ہیں۔ دو شخصیات، وہ کامل خدا بھی ہے اور وہ کامل انسان بھی ہے۔ وہ خدا ہے، ہمیں مانتے ہیں، لیکن یہاں پر لکھا وہ انسان بھی ہے۔ جیسا جیسا بائبل مجھے بتاتی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور جب میں وہ کام کرتا ہوں اور کلام پر یقین رکھتا ہوں تو خدا میرے ساتھ ہے، کیونکہ لکھا ہے جو آگے بڑھ جاتا اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں ہے، لیکن جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے، یہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے پاس باپ بھی ہے اور اس کے پاس بیٹا بھی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ ہاللیلویہ۔ بھائی صاحب اب بند کر دیا، چلے کوئی بات نہیں۔ تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح کون ہے؟ انسان ہے۔ میں شور کر رہا ہوں آج فلپیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی 5 آیت۔ فلپیوں دوسرا باب 5 آیت پڑھیے گا۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ۔ یسوع مسیح کس کے برابر تھا؟ یسوع مسیح خدا کے برابر تھا، لیکن اس نے اس کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، الوہیت کو کیا کیا؟ پڑھیے گا آگے۔ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے آپ کو الوہیت سے خالی کر دیا، اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ کون؟ وہ جو خدا کے برابر تھا، وہ جو اپنی ذات میں خود خدا تھا، یسوع مسیح He is God himself۔ لیکن اس کے علاوہ یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو خدا کے برابر تھا، خدا کی مانند تھا، اپنی ذات میں خدا تھا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ بن گیا، وہ انسان بن گیا۔ وہ جو خدا تھا جب انسان بن گیا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کہ وہ ایک انسان تھا، بشریت، بشر بننے کے ساتھ تجسم لینے کے بعد پھر وہ خدا نہیں بلکہ کیا تھا؟ انسان تھا۔ ایسا بائبل میں لکھا ہے کہ وہ خدا انسان بن کر دنیا میں آیا۔ اب میں اس کو کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ کچھ روایات ہیں جو کلیسیاؤں کے اندر چلتی ہیں جو کہ اکارڈنگ ٹو بائبل نہیں، جو کہ خدا کے کلام کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح نے جب مقدسہ مریم سے جنم لیا تو وہ خدا تھا یا انسان تھا؟ بتائیے گا جی، بتائیں۔ ابھی کیا حوالہ پڑھا؟ یسوع مسیح آدم زاد ہے، یسوع مسیح انسان ہے۔ وہ جو خدا تھا اس نے اپنے آپ کو خالی کیا، بشر بن کر دنیا میں آیا، اور جنم کس سے لیا؟ مقدسہ مریم سے۔ تو جنم لینے والا جو بشر بن کے آیا وہ انسان ہے، خدا نہیں ہے۔ اس لیے اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، یہ رونگ ہے۔ اس نے بشر کو، انسان کو، آدم زاد کو جنم دیا، خدا کو جنم نہیں دیا۔ اگر وہ خدا کو جنم دیتی ہے تو پھر میں آپ کو خدا نہیں مانتا، کیونکہ خدا سے پھر وہ بڑی ہو گئی۔ خدا خالق ہے اور وہ اس کی دستکاری ہے۔ آمین۔ تو جب جنم دیا ہے مقدسہ مریم نے یسوع کو، وہ بشر تھا کہ خدا تھا؟ ایسا بائبل میں لکھا ہے۔ یہ حوالے نوٹ کر لیں، اور اس کے آگے میں مزید آپ تک خدا کے کلام کو پہنچانا چاہوں گا۔ مزید اس کو دیکھیں گے، مکاشفہ کی کتاب پہلا باب 5 آیت۔ یسوع مسیح کامل خدا ہے اور وہ کامل انسان بھی ہے۔
जो वो कश्ती में सो रहा था तो वो इंसान था, क्योंकि इंसान को नींद आती है, लेकिन खुदा तेरा राखा ना कभी ऊँग लावे, तेरे रब नू निंदर भी ना आवे। वो इंसान था, उसको भूख लगती थी, वो कहता मैं प्यासा हूं सलीब के ऊपर, और इस तरह की बहुत सारी बातें। लेकिन जब बाइबल में लिखा तूफान आया तो उसने डांट दिया और हर एक चीज साकल हो गई। और उन्होंने जो उसके साथ है कहा कि ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मांगते हैं। तो मैं क्लियर करता चलूं, यीशु मसीह अपनी जात में कामिल खुदा है और कामिल इंसान भी है। आमीन जी पढ़िए बेटा। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह हालेलुया। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। आमीन। ठीक है, यीशु मसीह के बारे में क्या हमने पढ़ा कि यीशु मसीह वाहद है जो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है। पहलौठा कौन है मुर्दों में से जी उठने वालों में से? यीशु मसीह। आप कैसे कह सकते हो? ठीक हो? हाँ, बाइबल में लिखा है, हम अपने पास से नहीं कह रहे, जो बाइबल में लिखा है हम वो बात कर रहे हैं। यीशु मसीह वाहद है जो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है, ऐसा बाइबल में लिखा है। मेरे जहन में ये बात आई कि अलीशा ने भी मुर्दा को जिंदा किया था यीशु के आने से पहले। एलिया ने मुर्दा को जिंदा किया, याएब की बेटी मरकर जिंदा हुई, ठीक है। वो जो नाइन की बेवा है उसका बेटा मर के जी उठा, और लाजर 4 दिन का वो भी मर के जी उठा। आमीन। क्या सही है? ऐसा बाइबल में लिखा है, हमारा इस पर ईमान है। लेकिन बाइबल यहां पर बताती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में क्या है? भाई वो उससे पहले जी उठे हैं। क्या वो मरे? क्या वो मरे थे? क्या वो जी उठे? लेकिन फर्क ये है कि वो जो मरे थे वो जी उठे, दोबारा मर गए। वह यीशु मसीह है जिसमें मौत आई और वो तीसरे दिन दोबारा मुर्दों में से जी उठा, और अब कभी दोबारा नहीं मरने का। हालेलुया। यीशु वो है जो मर के जी उठा, दोबारा नहीं। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जल्दी पढ़ दीजिएगा, इब्रानियों 1 बाब 3 आयत में, वह यीशु मसीह है और लिखा है मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। जितने भी नबी हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं, ईमानदार हैं, राष्ट्रवाद हैं, खुदा के लोग हैं, अपने वक्त पर दुनिया में आए और फिर दुनिया से चले गए, और अब वो क्या कर रहे हैं? खुदा में सो रहे हैं। क्या करे वो जिंदा नहीं है। क्या वो जिंदा है? क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वह यीशु मसीह है जो पहलौठा है और मुर्दों में से जी उठा, और बाकी सारे आराम करें। क्या कर रहे हैं जी? क्या वो जिंदा है? वो सोए हुए हैं? क्या वो जिंदा है? अगर कोई कहे तो फिर यहां पर सिर्फ यीशु की बात है। इसका मतलब है बाइबल में लिखा वो अपने वक्त पर क्या होंगे जी? जी उठेंगे, और अपनी बारी पर। पहला फल यीशु, पहलौठा यीशु, और जब यीशु दोबारा आएगा तो वो अपनी बारी पर जी उठेंगे। लेकिन अब क्या है? सारे वो सो रहे हैं, वो मुर्दों में शुमार किए जाएंगे, वो मरे हुए हैं, वो सोए हुए हैं। और बाइबल में बताती है एक ही है जो जिंदा है। चलते चलते हमारे लोग अक्सर बात करते हैं जी, दूसरे मजहब के लोग हमें जब दावत देते हैं तो हम उनको जवाब देते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सादा से लोग कि जी आप ही बताएं, आप फैसला करें। अगर रास्ता मालूम करना हो तो एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी सोया हुआ है, तो रास्ता किससे पूछेंगे? वो कहते हैं जनाब जो जाग रहा है। तो फिर हम कहते हैं हाँ तो फिर ठीक है, हमारा यीशु जाग रहा है, हमारा यीशु। और दूसरा क्या कर रहा है वो? तो कौन कौन सो रहा है? सारे ही। मैंने कहा सारे ही। मूसा सो रहा है, दाऊद और मुगस्सा मरियम, ऐसा ही है। तो फिर शफायत किससे करे? वो जो जिंदा है, वो जो सुनेगा, जिससे रास्ता पूछ सकते हैं। और वो बात की दाई तरफ पड़ेगा बेटा, सिर्फ 2 आया उठे हैं। कौन है पहलौठा? मुर्दों में से जी उठने वालों में कौन है पहला फल?
वाहद यीशु मसीह। ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि बाइबल में लिखा है और मैं इस पर ईमान रखता हूं। आमीन जी। अब जो बाप की दाहिनी तरफ है उसका काम क्या है? कलाम मुकद्दस में से बेटा इसको पढ़िएगा, ये रोमियो उसका 8 बाब 33 के लास्ट है। मैं फिर बताना जरूर, मैंने कहा भाई साहब चलो प्यार करते हैं, सुनने के लिए है, भाई साहब भी सफर करके हैं, एक प्रोग्राम से वो करा रहे हैं, तो ये चाहता था कि ज्यादा इन्हें वक्त दिया जाए और मैं इसको इधर वाइंड अप कर दूंगा। जी पढ़िएगा। खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश, हालेलुया, खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। आमीन। आमीन। कौन शिफायत करता है? पक्की बात। क्यों सिर्फ यीशु मसीह ही शिफायत करता है? कोई बताएगा? क्योंकि वही जिंदा है ना, बाकी क्या कर रहे हैं? और मुकद्दसा मरियम। और बाप की दाहिनी तरफ कौन बैठा हुआ है? वो जो जिंदा है, वो जो पहले उठा है मुर्दों में से, जी उठने वालों में से। और फिर लिखा है खुदा ने ना सिर्फ उसको अपने साथ बैठाया है, ना सिर्फ वो जिंदा है, बल्कि लिखा है कि वो मुकद्दसी की क्या करता है? मुकद्दसा मरियम, हम गुनाहगारों के वास्ते शिफायत का इख्तियार मुकद्दसा मरियम के पास नहीं है। आमीन। क्या आपने सुना? क्या समझ में नहीं आया? तो आपके अक्षर से पता चलता है कि वाकई आपके पल्ले ये बात पड़ी है। वह जो खुदा का बेटा यीशु है जो आसमानों पर जिंदा है, खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है और खुदा ने उसकी ड्यूटी लगाई है कि वो मेरे लिए और आपके लिए खुदा बाप के सामने शिफायत कर रहा है। और जिसको खुदा ने मुकर्रर किया है खुदा उसकी शिफायत को भी सुनता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो कोई आगे बढ़ जाता और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता उसके पास खुदा नहीं है। इसलिए शिफायत का इख्तियार और हक सिर्फ यीशु मसीह के पास है। पढ़ेगा ये वाला रोमियो 8 बाब 26 आए। मैंने इल्तमास की थी हर वालों से भी कि काइंडली हमें थोड़ा सा अपने टाइम देना है, उनकी मेहरबानी को उन्होंने हमें टाइम दिया है, लेकिन मेरे पास ये टाइम नहीं थी। मुझे जी है टाइम, थैंक यू जी। पढ़िएगा रूह भी गौर से इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है। रूह से क्या मुराद है? रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर क्या करता है? गवाही देता है। ये रूह क्या है? रूह कुद्स से मुराद खुदा है। रूह कुद्स से मुराद क्या है जी? ऐसा कहां लिखा है? आप पाक रूह को खुदा क्यों कहते हो फ्रांसिस? सब बाइबल में लिखा है। हमारा ईमान है कि खुदा का पाक रूह हकीकत में खुद खुदा है और लिखा है कि वो हमारी शिफायत करता है। कौन? पाक रूह हमारी क्या करता है जी? शिफायत करता है। बेटा आगे बढ़िएगा। हमारी शिफायत करता है और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है। हालेलुया। कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। आमीन आमीन। अब मुझे ये बताएं किसको शिफायत करनी चाहिए? मुकद्दसा मरियम को या खुदा के पाक को? लिखा है खुदा का पाक रूह खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसी की क्या करता है? वो इसलिए शिफायत करता है कि खुदा ने पाक रूह की और खुदा ने यीशु की ड्यूटी लगाई है। किसी दूसरे की, ना तो मूसा की, ना दाऊद की, ना मुकद्दसा मरियम की ड्यूटी खुदा ने लगाई है। ऐसा बाइबल में लिखा है। और अगर हम कलाम पर अमल नहीं करेंगे तो लिखा है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता उसके पास खुदा नहीं है। हाँ हो सकता है उसके साथ ओहदा रहे, हाँ हो सकता है कि उसके अच्छे ताल्लुकात कायम रहे, हो सकता है कि उसकी अच्छी मिनिस्ट्री रहे, लेकिन खुदा उसके साथ नहीं है। ऐसा बाइबल में लिखा है। तो बाइबल में लिखा है खुदा का पाक रूह और खुदा का बेटा यीशु मसीह बाप की मर्जी के मुताबिक
मुकद्दसों की, मेरी और आपकी शफायत करता है। और जिसको खुदा ने मुकर्रर किया है, सिर्फ खुदा उसकी शफायत पर कान लगाता है, किसी दूसरे की शफायत पर कान खुदा नहीं लगाएगा। और वजह, क्योंकि खुदा ने किसी दूसरे की ड्यूटी नहीं लगाई है। सो बाइबल हमें बताती है कि शफायत का इख्तियार सिर्फ यीशु के पास है। और बाइबल में लिखा, यीशु ने क्वेश्चन किया, किसी औरत ने यीशु से कहा कि मुबारक है वो रहम जिस पे तू रहा, और मुबारक है वो छाते जो तूने चूसी। ये किसकी तरफ जा रहा है? बताए बता। हाँ, शाबाश, किसकी तरफ? मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, और मुबारक है वो छातियां जो तूने चूसी। यीशु ने क्या कहा? हाँ, ये ठीक है, ये सच है, वो मुबारक है जिसके बदन में मैं रहा और इसका दूध मैंने पिया। ये मुबारक है, ये बात सच है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुबारक वो है जो मेरे आसमानी बाप का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहन और भाई, जरूरत इस बात की है कि खुदा के कलाम से इस्तेफादा करें, कलाम को सीखे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा अपने खादमों का एतबार नहीं करता और अपने फरिश्तों पर हमाकत को आयद करता है। खुदा आप सबको बड़ी बात करे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आए आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे और दुआ रबान में शरीक होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज गॉड। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जो सब दिन उस वक्त मुआफ करते हैं, तू भी मेरे कसूर में मुआफ कर, हमें आज़माइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तक रहे। प्रेज गॉड। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्स की रफाकत शराकत हम में से हर एक के साथ, दुनिया के कुल मुक़द्दसीन, नामलीवों, बरगज़ीदों और बनी इस्राइल के साथ यीशु मसीह के अमल तक होता है। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, आप सबको सलाम, आप खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। थैंक यू।